ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਮਸਤੇ, ਆਦਾਬ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਮੈਥ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੈਥ ਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੈਕਚਰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਚੈਪਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਿਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਪੇਪਰ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ 1005, ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਅੱਜ YouTube ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਓਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਆ। ਇਹ ਆਫਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਿਟੇਲ ਵਗੈਰਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਆ ਚਾਹੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਆਨਲਾਈਨ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਫਲਾਈਨ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਜੇਕਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਸੋ 1005 ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਆਫਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੌਖੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਕੋਈ ਬਾਹਲੇ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਰਾਈਟ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ 30 ਵਰਕਰਸ ਕੈਨ ਬਿਲਡ ਅ ਬ੍ਰਿਜ ਇਨ 40 ਡੇਜ਼, ਯਾਨੀ 30 ਵਰਕਰ ਕਹਿੰਦਾ 40 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦਾ 75 ਵਰਕਰ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਸੇਮ ਵਰਕ, ਜੇਕਰ ਉਸੇ ਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 75 ਬੰਦੇ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੇਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ 30 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾਗਾ, 30 ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾਗਾ ਉਹ 40 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 75 ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨਗੇ, ਇਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 75 ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ। ਤਾਂ 15 ਦੁਣਾ ਤੇ 15 5 5 8 40, 8 ਦੂਣੀ 16, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਭਾਈ, 16 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ A ਐਂਡ B ਟੂਗੈਦਰ ਕੈਨ ਕੰਪਲੀਟ ਅ ਸਰਟੇਨ ਵਰਕ ਇਨ 20 ਡੇਜ਼। A ਤੇ B ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ B ਤੇ C ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 24 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦਾ A ਇਜ਼ ਟਵਾਈਸ ਐਜ਼ ਗੁੱਡ ਵਰਕਮੈਨ ਐਜ਼ C, ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ A ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੁੱਗਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ C ਤੋਂ। ਦੁੱਗਣਾ ਚੰਗਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁੱਗਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ C ਤੋਂ। ਦੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨ ਵਾਟ ਟਾਈਮ B ਅਲੋਨ, B ਇਕੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ 40% ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਰਾਈਟ ਹੈ। 40% ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ A ਤੇ B ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ A ਪਲੱਸ B ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। B ਤੇ C ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ 24 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਕੰਮ ਮੰਨ ਲਿਆ 120, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ A ਪਲੱਸ B ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, 6 ਕੰਮ, 20 ਛੇਕਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, 24 5 120, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਾਂ, ਯਾਨੀ A ਪਲੱਸ B ਪਲੱਸ B ਪਲੱਸ C, A ਪਲੱਸ B ਪਲੱਸ B ਪਲੱਸ C, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ, 6 ਤੇ 5 11, 6 ਤੇ 5 11। B ਇੱਥੇ 2 ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ, B ਇੱਥੇ 2 ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਗਾ, A ਪਲੱਸ 2B ਪਲੱਸ C ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 11, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ A ਇਜ਼ ਟਵਾਈਸ ਐਜ਼ ਗੁੱਡ A ਵਰਕਮੈਨ ਐਜ਼ C, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ A ਆ ਉਹ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ C ਤੋਂ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ C ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਦੁੱਗਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੇਕਰ A ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ C ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਆਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ A ਬਰਾਬਰ 2C ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ 2C ਪਲੱਸ 2B ਪਲੱਸ C 11 ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 2 ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਾਂ ਤਾਂ 2 ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਕੇ B ਪਲੱਸ C ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ C ਬਾਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਗਾ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਯਾਨੀ B ਤੇ C ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, 5 ਹੈ। ਕੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਯਾਨੀ 2 ਗੁਣਾ 5 ਪਲੱਸ C ਬਰਾਬਰ 11, ਯਾਨੀ 10 ਆ ਗਿਆ। C 11 ਮਾਈਨਸ 10, C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, 1 ਆ ਗਈ। ਯਾਨੀ C ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ 1 ਹੀ ਆ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ B ਪਲੱਸ C ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ 5 ਹੈ, ਜੇਕਰ B ਪਲੱਸ C ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ 5 ਹੈ ਤੇ C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ B ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 4 ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ B ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ B ਇਕੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ 40% ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਤਾਂ 40% ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 120 ਦਾ। 120 ਦਾ ਟੋਟਲ ਕੰਮ ਹੈ, 120 ਦਾ 40% ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, 48, ਰਾਈਟ ਹੈ। 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟੀ ਜਾਊਗੀ, 12 ਚੌਕ 48, ਯਾਨੀ 48 ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਜੇਕਰ B ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦਾ, 4 ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਲਿਆ। B ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ 12 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਯਾਨੀ 12 ਡੇਜ਼ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ A ਪਲੱਸ B ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੱਢਣਾ, ਕੱਢ ਲਿਆ, 6 ਆ ਗਿਆ। B ਪਲੱਸ C ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ 5 ਆ ਗਿਆ। ਤਿੰਨੇ ਮਿਲਾ ਤੇ A ਪਲੱਸ 2B ਪਲੱਸ C 11 ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ A ਬਰਾਬਰ ਮੈਨੂੰ 2C ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ 2C ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ, 2 ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ, B ਪਲੱਸ C ਆ ਗਿਆ।
यानी इन्हों का 11 कम आ गया राइट। हुण B प्लस C का एक दिन का कम 5 है तो मैं 5 वैल्यू पुट करती, C 11 माइनस 10, C की वैल्यू 1 आ गई। जेकर C की वैल्यू 1 आ गई तो जेकर B प्लस C एक दिन के 5 काम करता तो C 1 करदा गा तो B का मतलब 4 करता होगा। B जेकर 4 करदा है तो हुण B 40% काम किन्ने दिनां खत्म कर दूगा। टोटल काम अपने को 120 आ, 120 का 40% 48 आ, 48 का जेकर 48 काम उन्हें खत्म करना हो तो एक दिन के 4 करता तो 12 चौक 48 12 दिनों के काम खत्म कर दूगा राइट। हुण इहो ਜਿਹੇ क्वेश्चन जो सिंपलीफिकेशन वाले आते मैं हमेशा कहा कि लालच नहीं करना, लालच बुरी बला है। बस ऐ मान लो भी जेकर लालच करोगे तो क्वेश्चन गलत होना। एंड जो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना तो पहले पिछों करना, जी पिछली ब्रैकेट आ पहले सब तो उसको पहले सब तो पहले सॉल्व करना, पिछों लगना जो भी ये क्वेश्चन सॉल्व करने। जिवें आप इत्थे देखिए तो आप जाने तो पिछली ब्रैकेट अपने को आह दिख रही है, यानी इत्थे 32 आ माइनस 54, इनू मैं 1/9 लिख सकता तो उस तो बाद 3, यानी 9 6 54 6 3 18, 32 चो 18 कड्ढां तो 14 होंदे आ, यानी कहने का मतलब यह कितना आ गया 14 आ गया राइट है। जो ऐ करके ब्रैकेट देखी तो बेसिकली इत्थों तो लैके इत्थों तक 14 आ गया। हुण आह 24 दी ना मैनू, यानी 24 माइनस 22 जो आह ब्रैकेट में ओपन कर दूंगा तो 24 माइनस 14 हो जाऊगा, यानी कितना आ गया मेरा 10 आ गया। कितना आ गया मेरा 10 आ गया। ध्यान देना हुण आह ब्रैकेट ते आह ब्रैकेट रहेगी राइट, यानी इत्थे 36 आ गया। इत्थों तक मैं जो सॉल्व किया तो मेरा कितना आ गया 10 आ गया राइट है। 36 चो 10 कढूंगा तो कितना आ जाऊगा 26 आ जाऊगा। बाहर मेरा कितना आ गया जी 52, यानी 52/26 कितना आ गया अपना 2 आंसर आ गया। बहुत सौखे तरीके सॉल्व हो गया, नहीं बहुत जाने इन्होंने लमकाई जाएंगे। सो पिछों सॉल्व कर लगोगे तो आसानी के नाल सॉल्व हो जाना। 2 आंसर आ गया राइट है। इस तो गाह वाला क्वेश्चन कहता एक सर्कुलर पार्क है, हैज पाथ ए सर्टेन विड्थ अराउंड इट, ठीक है। इफ द कहता रेशो बिटवीन द पेरीमीटर ऑफ द आउटर सर्कल एंड इनर सर्कल, यानी 2 सर्कल है इस तरीके दे, 2 सर्कल है इस तरीके दे। कहता जो आउटर सर्कल है तो इनर सर्कल की जी ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਉਹ 3:1 ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾਗਾ ਉਹ 2πr ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ r ਨਾਲ ਕਹਿਦਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਰਕਲ ਨੂੰ 2π ਛੋਟੀ r ਨਾਲ ਕਹਿਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 3:1। 2π ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, यानी रेडियस ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਉਹ 3:1 ਆ ਗਈ। 3:1 ਆ ਗਈ, यानी ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 3 ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ 3 ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦੈਨ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਵਿਡਥ ਆਫ ਦਾ ਪਾਥ। ਹੁਣ ਪਾਥ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਪਾਥ ਹੈ, ਆਹ ਪਾਥ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਈ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ 1 ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ 3 ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ 3 ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ 2 ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ 2 ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। यानी ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3:1 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਰਾਈਟ ਹੈ। 3:1 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 3 ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ 3 ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ 1 ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਡਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ 3 ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹ 2 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਹ 2 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, यानी ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਥ 2 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਥ 2 ਰਹਿ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਆਊਟਰ ਸਰਕਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 6 ਆ। ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਆਊਟਰ ਸਰਕਲ 6 ਆ। ਆਊਟਰ ਸਰਕਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਬਾਹਰਲਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ, ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਹੈ। यानी 3 ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, 6 ਦੇ ਆ। 3 ਬਰਾਬਰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਥ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, 3 - 1 2, ਤਾਂ 2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 6/3 × 2, यानी 3 दूनी 6 2 दूनी 4, यानी 4 सेंटीमीटर विड्थ पाथ की विड्थ है। 4 सेंटीमीटर आंसर आ गया। कितना ज़्यादा आसान है तो कितना ज़्यादा सिंपल हो गया ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता जी ये सर्टेन सम अमाउंट्स टू 11,760 रुपये हो जाती है 2.5 सालों के 9% पर एनम के हिसाब से सिंपल इंटरस्ट राइट है। यानी कोई अमाउंट है वो 11,760 होगी 2.5% के हिसाब से, जेकर सॉरी 2.5 सालों के 9% के हिसाब से। कहता वट विल बी द सिंपल इंटरस्ट दसो ऑन द सेम सम। कहता सिंपल इंटरस्ट कितना होगा जेकर 4 से 2/5 सालों के 15% के हिसाब से देखा जाए राइट। पहला आपको मूलधन पता होना चाहिए। मूलधन आप कढ़ लेना, देखो ध्यान के नाल मूलधन किवें कढ़ांगे। हुण 11,760 होगी अमाउंट राइट। अमाउंट का मतलब की हुंदा मूलधन प्लस ਵਿਆਜ। मूलधन प्लस ਵਿਆਜ की हुंदा अमाउंट हुंदी है। मूलधन मैं हमेशा 100% मनदा, 100% मूलधन मन्निया राइट है। 100% मन्निया तो बेसिकली जो इंटरस्ट है, इंटरस्ट मेरा कितना आ जाऊगा 2.5 सालों के जेकर 9% है, 2.5 सालों के जेकर 9% है, 2.5 सालों का मतलब की है 5/2, 5/2 के हिसाब से जेकर 9% देखा तो कितना बन जाऊगा 45/2% बन गया, 45/2%। यानी अमाउंट है जी मेरी वो 100%
प्लस इंटरस्ट 100% का मूलधन है, इंटरस्ट मेरा 45/2 है, 45/2% है। इन्होंने जो मैं जोड़ा तो यह मेरा बन गया जी 245/2% बन गया। 245/2% मेरी अमाउंट आ गई जी मैंने बराबर दी हुई है जी 11,760 की, 11,760 के बराबर दे रखी है। यानी कहने का मतलब की है कि जेकर मैं 100% की वैल्यू कढ़नी हो, यानी मूलधन की वैल्यू कढ़नी हो तो वह की आ जाऊगा 11,760 वटा 245/2 जोड़ा कि उपर चला जाऊगा गुणा 100, यह मेरा मूलधन आ जाऊगा। इनू कट कटा लेने आप तो इनू कट्टिया तो 5 चौका 20, 5 नाया 45 तो 5 दूना यह आ गया। ठीक है, 7 7 49, 7 7 1 7, 7 1 7 ते 7 6 42 तो 7 8 56 राइट। एक जीरो नाल ला दो, 7 तो फिर कट्टा गया, 7 दूनी 14, 7 चौका 28, यानी यह आ गया 24 दूना 48 दूना 9600 आ गया। 9600 आ गया, कढ़ के देख लो 100% की वैल्यू कितनी आ जाऊगी 9600 आ जाऊगी, यानी मूलधन मेरा कितना आ गया 9600 आ गया राइट। हुण आपां सिंपल इंटरस्ट कढ़ना गा इसे सेम सम ते यानी 9600 ते 9600 ते जेकर कहंदा 4 सही 2/5 सालां दा 15% होवे, 4 सही 2/5 नूं मैं की लिख सकदा 4 5 20 22/5 यानी 22/5 ते 15% के हिसाब नाल बटा ला दो थल्ले 100। PRT तो सारे फार्मूला पता ही होगा, तो 5 3 15 आ गया राइट। जीरो नाल जीरो कट्टेगी, वैसे ये बनूगा 11 का मल्टीपल बनूगा, इतने 22 है ना 11 का मल्टीपल बनूगा। आप 11 का मल्टीपल देख लें, 11 की जी डिविजिबिलिटी होंगी है वो किमें होंगी है भला 6 ते 3 9, 6 ते 3 9 आह 11 का मल्टीपल बनता, यानी आह आंसर हो सकता 6 ते 6 12, 3 ते 3 6, 12 चो 6 कढ़िए ये नहीं बनता 11 की मल्टीपलाई, 6 ते 3 9, 6 ते 4 10 आ भी नहीं बनता, 6 ते 3 9, 3 ते 4 7 ये भी नहीं बनता। 11 की डिविजिबिलिटी हमेशा देखियो कि एक अखर छड्ड के, जिवें 6 ते 3 9 बन गया, 6 ते 3 9 बन गया, 6 ते 3 9 बन गया राइट। या तो यह 0 बनता हो या फिर जोड़ा भी आंसर आए वो 11 का मल्टीपल हो, 11 का मल्टीपल हो, जिवें मान लो आपां नूं पता नहीं कि 13 31 11 का मल्टीपल है कि नहीं, तो 1 ते 3 4, 3 ते 1 4, 4 - 4 दोनों का डिफरेंस 0 आ गया, यदा मतलब 11 का मल्टीपलाई हैगा। इस तरीके के नाल यानी कि करना हुंदा राइट। जिवें फॉर एग्जाम्पल मान लो आए आ गया कि आह दसो 11 का मल्टीपल हैगा कि नहीं, तो 7 पहली गल तो हैगा ही है, तो 7 ते 7 14 ते 7 21, 21 आ गया, 7 ते 7 14 ते 7 21 आ गया, 21 - 21 कितना आ गया 0 आ गया राइट। इस तरीके के नाल जे मान लो होर देखना हो, मान लो 15 225 देखना, 15 225, 15 225 देखना, तो 1 ते 2 3, 3 ते 5 8 राइट, 5 1 ते 2 3, 3 ते 5 8, 5 ते 2 7, तो कितना आ गया 1 आ गया। यदा मतलब ये 11 का मल्टीप्लीकेशन नहीं करता, इस मतलब मल्टीप्लाई है नहीं है बेसिकली राइट। सो इस तरीके के नाल सो आही आंसर अपना आ गया, बाकी बहुत सौखा है सॉल्व कर लियो। इस तो बाद आप अगले क्वेश्चन की गल करिए, कहता फाइंड द सम ऑफ द नंबरस, सम ऑफ द नंबरस आप कढ़ना 400 तो 600 के विचकार, कहता जेडे कहता डिवाइड करते हो 6 12 16, हुण 6 12 16 जेकर तिन्ना ते डिवाइड होना चाहिए तो यदा एलसीएम कढ़ना पैना आपां नूं, लीस्ट कॉमन फैक्टर राइट, क्योंकि जो इन्ना तिन्ना का कॉमन होगा उही कट्टिया जाऊगा। जे मान लो मैं 400 की गल करा 412 ते तां भावें जो जावड़े जिवें हुण 12 ते भी नहीं जाता, वैसे 3 का मल्टीपल है नहीं गा राइट। तो इस तरीके के नाल जिवें फॉर एग्जाम्पल मान लो होर मान लेने आपां कि मान लो 404 है ना, 404 जे उन्होंने कट्टा तो 12 30 36 आ गया, ये भी नहीं जाता राइट। इस तरीके के नाल यानी कहने का मतलब जो जाऊगा तो वह 6 12 16 तिन्ना ते जाना चाहिए, किसी एक ते नहीं, तिन्ना ते जाऊगा तो आपको एलसीएम कढ़ना पैना। हुण 6 12 16 का एलसीएम की आऊगा, वैसे तो सीधा देख के ही पता लगता 48 आना चाहिए, पर फिर भी जे कढ़ना नहीं आता तो इस तरीके नाल कढ़ लो। आह आ गया भाई तुहाडा इस तरीके दे नाल, 3 ते करोगे तो 3 दूनी 3 इत्थे 8 ही आ गया राइट, 2 करोगे तो कितना आ जाऊगा यह इन्ना आ गया, यानी 2 3 6 दूनी 12 चौक 48, यानी 48 अपना की आ गया एलसीएम आ गया, 48 अपना की आ गया एलसीएम आ गया। यदा मतलब 48 48 दे मल्टीप्लीकेशन देखा तो फिर 400 तो 600 के आपको वो अखर देखने पैणगे, वो अखर किहड़े किहड़े फिर उन्होंने सारा का सम करांगे, फिर अपना जाके कितने आंसर आऊगा। हुण 48 का मल्टीप्लाई भी आपको 400 तो 600 देखना बड़ा औखा है, तो सीधा सीधा एक अंदाजा लाओ 480, 48 का मल्टीप्लीकेशन 480 तो पक्का ही होगा ना, 48 गुणा 10 480 तो पक्का हो, तो एक तो आप 480 लभ लिया, यदा मतलब जो इस तो नीचे वाला हो वह 48 घटा दो तो वह 48 का मल्टीप्लीकेशन हो जू 432 हो जाऊगा। जे हुण इस तो गाह अच्छा 432 के 48 घटावांगे तो 400 तो थले हो जू, यदा मतलब वो नहीं हो सकता। 480 आप 48 जोड़ांगे तो कितना आ जाऊगा, 480 जेकर आप 48 जोड़ांगे तो कितना आ जाऊगा, ध्यान दे नाल 48 जोड़ लो 8 आ गया,
तो कितना आ गया 528 आ गया 528 आ गया 528 ਦੇ ਵਿੱਚ 48 जोड़ लो तो कितना आ जाऊगा 8 8 16 आ गया 2 ਤੇ 4 यानी 576 आ गया बस 576 ਦੇ ਵਿੱਚ 48 जोड़ोगे तो 600 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਓ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 2 ਤੇ 8 10 ਤੇ 6 16 3 ਤੇ 1 4 ਤੇ 8 12 12 ਤੇ 2 14 14 ਤੇ 7 कितना आ गया 21 आ गया राइट 4 ते 2 6 ते 4 10 ते 5 15 ते 5 20 यानी 2016 जोड़ बन गया आही अपना आंसर है 2016 आंसर ਇਹਦਾ आ गया राइट है ना सो 48 ਆਪਾਂ एलसीएम ਕੱਢ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 48 ਦਾ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਸੀ ਯਾਨੀ ਉਹ ਅੱਖਰ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 48 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਆ ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ 480 ਸੌਖਾ ਸੀਗਾ 480 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 48 ਘਟਾ ਲਏ ਫਿਰ 48 ਜੋੜਤੇ ਫਿਰ 48 ਜੋੜਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਖਰ ਆ ਗਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋੜਤਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬਾਰਟੈਂਡਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਕਸ ਅ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ 18 ਲੀਟਰ ਆਫ ਵਾਈਨ ਐਂਡ ਸੋਡਾ ਵਾਈਨ ਤੇ ਸੋਡਾ ਕਹਿੰਦਾ 18 ਲੀਟਰ ਹੈ ਮਿਕਸਚਰ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ 30% ਸੋਡਾ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਵਾਈਨ ਐਂਡ ਸੋਡੇ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਡਾ ਕਹਿੰਦਾ 30% ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਨ ਆ ਉਹ 70% ਹੋ ਗਈ ਯਾਨੀ 30 ਤੇ 70 ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਊ ਮੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਐਡਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਸੋਡਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਐਡ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਓ 40 ਹੋ ਜੇ ਯਾਨੀ ਸੋਡਾ 40 ਹੋ ਜੇ ਜੇ ਸੋਡਾ 40 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ 60 ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਰਾਈਟ ਆ ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਚਮਚੇ ਮੰਨ ਲਓ ਖੰਡ ਦੇ ਪਾਤੇ ਰਾਈਟ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਉਸ ਮਿਕਸਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ 2 ਚਮਚੇ ਖੰਡ ਦੇ ਆ ਐਂਡ 1 ਗਲਾਸ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਪਾਤਾ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੱਧ ਗਈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚਮਚੇ ਆਪਾਂ ਖੰਡ ਦੇ 2 ਪਾਇਆ ਉਹ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਪਾਤਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪਰ ਚਮਚੇ ਤਾਂ 2 ਹੀ ਆ ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੋਡਾ ਆਪਾਂ 40% ਕਰ ਲਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਾਉਂਟ ਤਾਂ 19 ਹੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਨ ਤਾਂ 19 ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ 7 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਐਂਡ 6 ਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਕਿਉਂਕਿ 42 42 ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅੱਛਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇਹਨੂੰ 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਕੀ ਆ ਗਈ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 6 ਤੀ 18 ਆ ਗਿਆ 6 7 42 ਆਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 7 ਚੌਕਾ 28 ਤੇ ਆਹ ਆ ਗਿਆ 7 6 42 यानी हुण मैनू कहानी समझ लग रही है कि वाइन तो 42 की 42 है पर सोडा 18 तो 28 हो गया पर सोडा 18 तो 28 हो गया अच्छा शुरू के मिक्सचर किन्ना गा 42 ते 18 शुरू के मिक्सचर 42 ते 18 60 है इसे 60 की वैल्यू आपां नूं किन्नी दे रखी है 18 लीटर इसे 60 की वैल्यू आपां नूं किन्नी दे रखी है मिक्सचर की 18 यानी शुरू का जिहड़ा मिक्सचर 60 है इत्थे रेशो ਦੇ ਵਿੱਚ एक्चुअल वैल्यू ਉਹਦੀ 18 ਗੀ एक्चुअल वैल्यू ਉਹਦੀ 18 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 18 ਤੋਂ 28 ਆ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ 30 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ 40 ਹੋਇਆ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਆਹ 10 ਵਧਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਹਾਊ ਮੱਚ ਸੋਡਾ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਐਡਡ ਯਾਨੀ ਸੋਡਾ ਕਿੰਨਾ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ 18 ਤੋਂ 28 ਹੋ ਗਿਆ 10 ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 10 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਸ 18 ਵਟੇ 60 ਗੁਣਾ 10 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟੇਗੇ 6 ਤੀਏ 18 ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਲੀਟਰ ਆਪਾਂ ਸੋਡਾ ਐਡ ਕੀਤਾ 3 ਲੀਟਰ ਸੋਡਾ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਧਾਰਨ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮ ਆਫ 4830 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਿੰਨ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ A ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆ ਉਹ A ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮ ਆਫ 4830 ਰੁਪਏ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਿੰਨ ਚਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ A ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ A ਤੇ B ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4:5 ਐਂਡ B ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ C ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ 9:16 A ਤੇ B ਜਦੋਂ B ਤੇ C ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ A/B ਐਂਡ B/C ਯਾਨੀ 4/5 ਤੇ 9/16 ਤਾਂ ਆਪਾਂ A ਅਨੁਪਾਤ B ਅਨੁਪਾਤ C ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4 9 36 9 5 45 ਤੇ 15 6 16 5 80 16 5 80 ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ नहीं पता लग्या तो फिर ਇਹਦਾ मतलब रेशो ਕੱਢਣੀ नहीं आती तो पहला पढ़ो भाई मैथ चंगी तरह कराया होया वो जाके देखो लैक्चर पहला ठीक है 36 15 80 आ गया 36 15 80 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਜੋੜੀਏ 36 15 ਕਹਿ ਗਿਆ 45 36 45 ਤੇ 80 ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਜੋੜਾਂ ਤਾਂ 6 5 11 3 1 4 4 8 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 8 8 16 यानी 161 आ गया यानी इस टोटल ਦੀ ਵੈਲਿਊ 161 ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ 4830 ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛਿਆ B ਕਿੰਨਾ ਇੱਥੇ 45 ਤਾਂ 45 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਨੀ 4830 ਵਟਾ 161 ਗੁਣਾ
45। 161 ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ 3 ਨਾਲ ਤਾਂ 483 आ जाऊगा, 45 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 135 आ जाऊगा, यानी 1350 इसका राइट आंसर बन गया। 1350 इज द राइट आंसर, 1350 इज द राइट आंसर। अगला आ क्वेश्चन बहुत मशहूर है एंड इसका सीधा सीधा फार्मूला लगता, हालांकि फार्मूला इत्थे तो तुहानूं रट्टा लगू पर मेरा मैथ दे विच कराया होया। देखो ध्यान दे नाल कहंदा आफ्टर अलाइंग ए डिस्काउंट 20% ऑन द मार्क प्राइस, यानी मार्क प्राइस ते 20% का डिस्काउंट है, मार्क प्राइस ते 20% का डिस्काउंट है। कहंदा उस तो बाद कहंदा प्रॉफिट 12% हो जाता, उस तो बाद यानी जिहड़ा प्रॉफिट परसेंट है वह कितना गा 12% है। तो दसो कहंदा वट परसेंट मार्क प्राइस अबव द कॉस्ट प्राइस। ये हमेशा ध्यान दे विच रखियो जदों डिस्काउंट ते प्रॉफिट इकट्ठे दिते होण, जदों डिस्काउंट ते प्रॉफिट इकट्ठे दिते होण, यानी मार्क प्राइस ते डिस्काउंट दिता होया एंड प्रॉफिट दिता होया तुहानूं कॉस्ट प्राइस ते, यानी कहण दा मतलब यह जदों इकट्ठे दिते होण तां मार्क प्राइस ते कॉस्ट प्राइस दी रेशो आ जाऊगी। किवें आ जाऊगी भला? देखो मार्क प्राइस ते हमेशा डिस्काउंट है, मार्क प्राइस ते हमेशा डिस्काउंट होगा, ऑब्वियस गल है, एंड प्रॉफिट होगा तुहानूं कॉस्ट प्राइस ते, ऑब्वियस गल है, राइट है। हुण जदों भी एवें आवे तां की करना गा, इत्थे आ जाऊगा मार्क प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट एंड कॉस्ट प्राइस आ जाऊगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये फार्मूला याद रख लो ध्यान दे नाल। जदों भी तुहानूं डिस्काउंट परसेंट दिता होवे एंड प्रॉफिट परसेंट दिता होवे तां मार्क प्राइस ते सीपी दी रेशो सीधा आ जाऊगी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट से। यह एमपी ते सीपी दी मार्क प्राइस ते कॉस्ट प्राइस दी रेशो आ गई। किवें आ गई भला? हुण एमपी ते सीपी दी यह रेशो देखो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट यानी 112, 100 प्लस 12% प्रॉफिट है एंड डिस्काउंट कितना 20% यानी 100 माइनस 20 80 आ गया। तो इहनूं कट कटा लो भाई, ये कट्टिया जाऊगा मेरे हिसाब दे नाल 4 ती 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 दूना 20, फिर 4 ते कट्टिया जाऊगा 4 7 ते 4 5 20, यानी 7:5 आ गया। यानी एमपी एंड सीपी की रेशो अपने को कितनी आ गई 7:5 आ गई। अपन की पूछा भी जो मार्क प्राइस आ वो कॉस्ट प्राइस तो कितना ज्यादा है परसेंट के, तो कॉस्ट प्राइस 5 है, मार्क प्राइस 7 है, तो कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है। परसेंट के कढ़ना तो 2 गुणा 100, कॉस्ट प्राइस के कंपेरिजन है तो बटे 5 आ जाऊगा, 5 दूनी 10 यानी 20 गुणा 2 40 आ गया, यानी 40% का आंसर आ गया। 40% ज्यादा है मार्क प्राइस, पर यह रेशो तुहानूं पता होनी चाहिए, इहनूं ज़हन दे विच रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखो फिर सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया, तो पिछों सॉल्व करना, हमेशा पिछों सॉल्व करना। तो आप पहला आह ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, देखो आ तुहानूं ब्रैकेट दींदी होगी, इस ब्रैकेट के अंदर भी पहला आह ब्रैकेट है। 34 के विचों जेकर मैं 19 घटावां तो किन्ने आ जाएंगे, 34 के विचों 19 घटा के 15 आ जाऊगा, ठीक है। उस तो बाद डिवाइडेड है, यानी 45 डिवाइडेड 15, 15 30 है 45 आ गया। यानी कहने का मतलब इस तो लैके इत्थों तक आ सारे की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, ये सारे की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। मुड़ के फिर यह ब्रैकेट के विच ही रहन दो, क्यों? क्योंकि पहला आह आपां सॉल्व करना, पिछों सारा देखो इत्थे कोई भी ब्रैकेट नहीं हैगी, यानी इत्थों तक इहनूं सॉल्व आपां नूं करना पऊगा। करो फिर ये बॉर्ड मास तो तुहानूं सारिआं नूं पता कि पहला मल्टीप्लाई ही होगा, राइट। तो इत्थे करांगे तो यह कितना आ जाऊगा 2 6 12, 5 6 30, राइट है। यानी यदी वैल्यू कितनी आ गई, यदी वैल्यू 30 आ गई। 12 ते 8 20, तो हुण इहनूं भी कढ लो, इत्थे माइनस है, माइनस यदी वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। यानी ये बन गया 20 तो आह बन गया माइनस 33, यानी 20 माइनस 33 कितना आ गया जी माइनस 13 आ गया। यानी माइनस 13 अपने को आंसर पिया, माइनस 13 इज द राइट आंसर, ठीक है। सो जेकर लालच ना करोगे तो यह बहुत आसानी नाल निकल जाना, पर इन्हूं पिछों सॉल्व करो हमेशा। अगला क्वेश्चन करते हैं, कहता स्पीड ऑफ स्ट्रीमर इन स्टिल वाटर। स्ट्रीमर कौन हुंदा? बंदा, यानी जो तरन वाला स्ट्रीमर है जोड़ा, कहता वो 12 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। जिवें स्ट्रीमर की स्पीड एक्स मान ला, तो यह मतलब वो स्पीड है जी एक्स किलोमीटर पर आवर है। उस तो बाद कहता स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यानी पानी की जी स्पीड है, पानी की स्पीड में मैं वाई मान लेना। पानी की जी स्पीड है कहता हाफ है कादी स्पीड ऑफ स्ट्रीमर अंगेस्ट द करंट। अंगेस्ट द करंट का मतलब जेकर स्ट्रीमर की स्पीड है जी वो अंगेस्ट द करंट, पानी के वहा के उल्ट होवे। हुण पानी के वहा के उल्ट स्ट्रीमर की स्पीड कितनी हो जूगी? एक्स माइनस वाई हो जू, एक्स माइनस वाई हो जूगी, एक्स माइनस वाई हो जूगी, राइट है। यानी कहने का मतलब वाई की वैल्यू हाफ ऑफ द स्ट्रीमर की जी स्पीड है वो अंगेस्ट द करंट, यानी एक्स माइनस वाई आ गया, एक्स माइनस वाई आ गया, राइट। यानी इत्थों मैं की कर सकदा, इत्थों मैं वाई ते एक्स की वैल्यू कढ़ सकदा, वाई ते एक्स की वैल्यू कढ़ सकदा। किवें भला? इत्थे वाई 1/2, इत्थे आ गया एक्स की वैल्यू 12 ते इत्थे आ गया माइनस वाई, राइट है। इहनूं सॉल्व कीता तां की आ गया 1/2 गुणा 12 माइनस 1/2 वाई आ गया।
-1/2 y आ गया, 2 छिक्की 12 आ गया, इनू इधर लियाओ तो यह 3/2 y बन गया बराबर की 6 दे, तो यह आ गया 3 दूनी 6 यानी y बराबर की आ गया 4 आ गया, y बराबर की आ गया 4 आ गया। यदा मतलब की आ कि स्ट्रीमर अगेंस्ट द करंट आ जिहड़ा बेसिकली ਉਹਦੀ वैल्यू जेकर आप कढ़नी होवे तो ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ x - y 8 आ जाऊगा। अपन पूछा की वट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ही पूछा, ओके तो y की वैल्यू ही पूछा अपन, स्ट्रीम की वैल्यू पूछा तो 4 आंसर आ गया, स्ट्रीम की वैल्यू पूछा तो सीधा 4 आंसर आ गया। देखो ध्यान दे नाल दोबारा दसदा, एक्स वैल्यू आप स्ट्रीमर की मान ली यानी बंदे की मान ली, इत्थे बंदा कर लो भावें जे तुहानूं ऐ लगदा, ठीक है। इत्थे बंदे की स्पीड जिहड़ी हैगी 12 किलोमीटर पर आवर आ। जदों कहंदा स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी पानी की स्पीड, जिहड़ा पानी का स्पीड आ कहंदा अद्धा गा काहदा भला स्पीड ऑफ मैन अगेंस्ट द करंट। जदों बंदा कहंदा अगेंस्ट द करंट तरदा गा, अगेंस्ट द करंट का मतलब की है x - y है ना। जो पानी के वहाव नाल चलूगा तो x + y होगा, यानी वो स्पीड तो रलनी है नाल जो पानी का वहाव वो भी रलूगा तो स्पीड बढ़ जाऊगी, पर अगेंस्ट द करंट का मतलब उल्ट चलता तो 12 - 4 आऊगा बेसिकली 8 जे अगेंस्ट द करंट कढ़ना होंदा, राइट। इनू x - y कहता, x की वैल्यू 12 पुट करती, y की वैल्यू अपने को 4 आंसर आ गया सीधा। चलो अगला कहना डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर सॉलिड सिलेंडर, अपन सिलेंडर की वैल्यू यानी सिलेंडर दिता होया बेसिकली, तो वह डायमीटर दे रखा, डायमीटर कितना है, डायमीटर है 14, तो यह मतलब रेडियस कितना हो जाऊगा 7 हो जाऊगा, यदा मतलब रेडियस है जो कितना हो गया 7 हो गया, ठीक है रेडियस 7 हो गया। उस तो बाद कहता वॉल्यूम है जो 2002 दे रखा, यानी सिलेंडर का जो वॉल्यूम है यानी वॉल्यूम की होंगे भला πr² h होंगे, πr²h राइट। πr² तो मैं r² की वैल्यू पुट कर देना, h कढ़ लाँगे आप किमें भला r², r मेरा कितना 7, तो 7 × 7 यह h बराबर की है जी 2002 के बराबर है, तो 7 नाल कट्टिया गया 7, 11 दूना 22, 11 1 11, 11 1 11, 9 बच गया, 11 8 88 तो 11 दूना 22, 2 2 9 तो 91 आ गया, यानी 7 ते कट्टा जाओ तो 13 7 91 आ गया, यानी एच की वैल्यू जी आ गई वो 13 आ गई, एच की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ गई। अपन पूछा कि कहता टोटल सरफेस एरिया कढ़ना सिलेंडर का, हुण टोटल सरफेस एरिया की हुंदा गा, टोटल सरफेस एरिया हुंदा गा पहला तो लेटरल सरफेस एरिया यानी इहदा पूरा घेरा लेटरल सरफेस एरिया, इहदा लेटरल सरफेस एरिया की होगा भला, देखो आह एक सर्कल है एक आ सर्कल है, जे दोनों नूं मिला दा मैं मान लो सिलेंडर में ऐं कर दा तो एक पूरा सर्कल बन जाऊगा, पूरे सर्कल का सरफेस एरिया ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 2πr ਹੁੰਦਾ, 2πr ਹੁੰਦਾ, पर यह तो मैं सिलेंडर ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਗਾ, ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ भी तो है ना, हाइट ਦੀ h है, हाइट ਦੀ h है तो आह की हो गया अपना लेटरल सरफेस एरिया हो गया, यानी लेटरल सरफेस एरिया मेरा कितना आ गया 2πrh। अच्छा आप तो टोटल कढ़ना गा, टोटल सरफेस एरिया की होंगे बेसिकली, टोटल सरफेस एरिया होंगे लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 × एरिया, 2 × एरिया, 2 × एरिया क्यों भला, देखो आह सर्कल है यदा πr², जेकर मैं पूरे ऐ देखा इस तरीके उपरों देखा जेकर मैं तो πr² बनता है, जेकर मैं नीचों देखा तो आ भी πr² बनता है, तो यह 2πr² बन जू, यानी कहने का मतलब 2πr², 2πr²। तो बेसिकली यदी वैल्यू कढ़ ली आप, हम यदी वैल्यू किमें कढ़ांगे ध्यान दे नाल, ये की हो गया 1 मिनट, यदी वैल्यू आप किमें कढ़ांगे ध्यान दे नाल देखो, तो बस वैल्यू पुट करनी है, होर कख नहीं करना, आंसर तुहाडे सामने आ जाएगा। तो कढ़ लेने भाई, तो इत्थे 2π है तो 2πr कॉमन आ गया, अंदर इत्थे h आ गया तो अंदर एक r आ गया, राइट 2πr तो 2/7, r की वैल्यू 7 है, यह 13 h की वैल्यू हाइट 13 गई अपनी, तो एंड ये कितना आ गया 7 आ गया, 7 नाल 7 कट्टिया गया यानी 44, 22 दूना 44, 13 ते 7 कितना आ गया 20 आ गया, 44 नूं 2 ना करो 88 आ गया, नाल 0 ला दो, यानी 880 आंसर आ गया टोटल सरफेस एरिया, सी आंसर अपने कोले पिया 880 आंसर अपना आ गया। बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा सिंपल ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, कहता एक सैलर कहता 2 साइकिल कहता 6000 ईच ते वेचदा गा, पर कहता एक नूं 20% प्रॉफिट ते वेच दिंदा एंड एक नूं 20% लॉस ते वेच दिंदा, तो इनू हमेशा जो भी 1% ते एक तो अपन लॉस हो जाए एक तो अपन प्रॉफिट हो जाए, तो हमेशा नैट प्रॉफिट वाला या नैट लॉस वाला
नैट परसेंट वाला बेसिकली फार्मूला लाओ। नैट परसेंट वाला फार्मूला होंगे एक्स प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। माइनस ला दो जेकर लॉस है, नहीं प्लस। 20% प्रॉफिट होया तो प्लस का 20 आ गया, 20% लॉस होया तो माइनस का 20 आ गया। 20 गुणा 20 बटा 100 आ गया, राइट। तो 0 नाल 0 कट्टी गई, यानी आह इहदे कट्टा गया, -4% आ गया। -4% का 4% लॉस होया, 4% लॉस होया। बस गल खत्म है, 4% लॉस होया। कई फार्मूला ऐ भी करा देंगे कि भाई 20 का स्केयर करके बटा 100 कर दो, यानी 400 बटा 100, तो 4% आ गया तो 4% का लॉस हो गया। और जो दोनों वैल्यू सेम हो उदों फार्मूला लगता, पर इनू रट्टा ना मारो, राइट। कई बार अड अड आ गया तो हमेशा तुहानू आही काम देगा, आही काम देगा, राइट। बहुत सिंपल जी गल है। जे थोड़ा जिहा एक्सप्लेन करना हो किवें कर सकदा, देखो जे मान लो मैं कॉस्ट प्राइस पहले का 100% मानना, तो जे उन्होंने 20% प्रॉफिट से बेचा तो किन्ने का बेचता होगा, 120 का बेचता होगा। अच्छा, सैलिंग प्राइस दोनों का बराबर है, सैलिंग प्राइस दोनों का बराबर है, यानी दूजे को भी 120 बेचा होगा, क्योंकि 6000 ईच है। ਇਹਦਾ मतलब दूसरे का सैलिंग प्राइस भी 120 है। जे मैं ਇਹਦਾ कॉस्ट प्राइस ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ कॉस्ट प्राइस ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ कॉस्ट प्राइस मैं किमें ਕੱਢ ਸਕਦਾਗਾ, देखो 120 ਤਾਂ जेकर मैं कॉस्ट प्राइस ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ लॉस होया 20% का, तो 100 बटा 80 आ जाऊगा, तो कितना आ जाऊगा, ये 40 दूना तो 40 30 2 5 है, यानी कॉस्ट प्राइस इसका कितना आ गया, 150 आ गया। यानी जेकर मैं पहले का कॉस्ट प्राइस देखा 100 रुपया, दूजे का कॉस्ट प्राइस मेरा कितना आ गया, 150, यानी दोनों का कॉस्ट प्राइस मिला के कितना हो गया, 250 हो गया। एंड इत्थे देखा कॉस्ट प्राइस सॉरी सैलिंग प्राइस दोनों के सेम है, यानी 120 120 240 आ गया, यानी 250 की चीज़ ने उन्होंने 240 च बेची है, 250 की चीज़ उन्हें 240 च बेची है। तो लॉस किन्ने का हो गया, 10 का लॉस हो गया। परसेंट के कढ़ना हो तो 10 गुणा 100 बटा 250 कॉस्ट प्राइस, तो 0 नाल 0 कट्टी गई, यानी 25 चौका 100, तो 4% का बेसिकली लॉस होया, 4% का लॉस होया, 4%। जिवें मर्जी कर लो, आता मैं कंसैप्ट तरीके नाल समझायागा, पर नैट परसेंट का फार्मूला याद रख लूँगे तो ज़्यादा वधिया। अगला आ गया, देखो रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ ए बस एंड कार। बस ते जिहड़ी कार की स्पीड की रेशो आपां नूं 6:7 दे रखिया। इफ कहंदा कार कवर्स 364 किलोमीटर की दूरी तय करदी 4 घंटिਆਂ च, जेकर उन्होंने 4 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 364 किलोमीटर तय कर लू तो ਉਹਦੀ स्पीड कितनी आ गई, 4 8 32 ਤੇ 4 8 32 ਤੇ सॉरी 4 9 36 ਤੇ 4 1 4, यानी ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ कार की स्पीड है वो 91 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। कार की स्पीड है जी 91 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਦੀ स्पीड पूछा, अच्छा स्पीडा की ही रेशो दे रखी है, इत्थे कार की स्पीड ਆਪਾਂ ਨੂੰ 7 दे रखी है, जी आप कढ़ ली 91 के बराबर। तो आप बस की स्पीड कढ़नी है जी कि 6 है, 6 बराबर कि आ जाऊगा 91 बटा 7 गुणा 6, यानी 13 7 91, 13 6 78, यानी 78 किलोमीटर पर आवर बस की स्पीड आ गई। 78 किलोमीटर पर आवर बस की स्पीड आ गई। बहुत ही सिंपल तरीके आप कढ़ता, समझ में बात आई। सो हुण जेकर अगला क्वेश्चन आप करते हैं, हुण जेकर अजे तक वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक करो, बोलना पैंदा शेयर करो, तो बाकी भाई अड अड दस्या करो कि इस तरीके मैथ पढ़ाया जा सकता। वन लाइनर शो अपना करंट अफेयर का इन्ना वधिया चलदा गा, तो देखा करो थोड़ा जिहा अपनी इन्नी क रिस्पोंसिबिलिटी समझो कि जेकर कोई बिना प्रमोशन के बिना गल्लां बातां करन दे, जिवें कहंदे हुंदे भी नो बकवास है ना, तो सीधी बात नो बकवास, जेकर एवं इस तरीके पढ़ रहे हैं आप, थोनों डिस्टर्ब मैं घट कर रहा। देखो आम तौर पर डिस्टर्ब किया जाता स्टूडेंट्स को, है ना, आम तौर पर देखते होंगे तुसीं आ साडे फलाने पैक फलाना त्योंका अद्धियां चीज़ां प्रमोशनां दी हुंदियां ते जवाक तंग हो जाता, जवाक नूं जान सुनाया जाता, राइट आ। मैं तो इन्ना ज़्यादा करदा भी नहीं, तो फिर जिन्ना क करदा घट्टो घट्ट उसनूं सपोर्ट करना चाहिए। चलो खैर मैं तो इन्ना क बोल के फिर हट जाना। वट इज़ द कंपाउंड इंटरस्ट ऑन ए सम रुपीज़ 13,000। 13,000 कहंदा सम है, कंपाउंड इंटरस्ट है जेकर 15% के हिसाब नाल 2 साल का होवे, एंड इंटरस्ट कंपाउंडेड 8 मंथली। देखो 8 मंथली का मतलब की है, जे मान लो मैं ये कहा कि मान लो अद्धा साल हुंदा, मान लो अद्धा साल हुंदा यानी 6 मंथली हुंदा, तो आप 6/12 कर दे। हुण जे मान लो 8 मंथली है तो फिर आप की कर देंगे 8/12 कर देंगे। 8 मंथली है तो 8/12 कर देंगे। 8/12 का मतलब की है कि 4 दूनी तो 4 30 है, यानी 2/3, यानी कहने का मतलब जेकर 15% पर एनम है, 15% पर एनम है तो 8 मंथली यानी 2/3 हो जाऊगा। इंटरस्ट भी इंटरस्ट कितना हो जाऊगा, 15 का 2/3 करांगे तो 3 5 15, 5 दूनी 10% ही हो गया, 10% हो गया, यानी 8 महीने फिर 8 महीने फिर 8 महीने 24 महीने बन जाएंगे। 24 महीने का मतलब 2 साल, राइट है। चलो खैर, तो 13,000 अपना की है भाई मूलधन, 13,000 ते 3 3
3 ਵਾਰੀ ਲੱਗੂਗਾ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ। 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ 10%, 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ 10%, 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ 10%, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਤਾਂ 10% ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ 1300 ਆ ਗਿਆ, 1300 ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। 1300 ਤੇ 10% ਯਾਨੀ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਲੱਗੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ 1300 ਤੇ 10% ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ 130 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਬਣ ਗਿਆ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 2600 ਤੇ 130, ਯਾਨੀ 2600 ਤੇ 130 ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 2730 ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ 2730 ਤੇ ਵੀ 10% ਲੱਗੂਗਾ। 2730 ਤੇ 10% ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ 10% ਲੱਗ ਗਿਆ, 00 ਕੱਟ ਦੋ, ਯਾਨੀ 273, ਯਾਨੀ 273 ਹੋ ਗਿਆ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਦਾ। ਰਾਈਟ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਆ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ, ਟੋਟਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਦੱਸਣਾ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ 13 13 13 13 ਤੇ 3900, ਤਾਂ ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਲਾ। 130 ਆਹ ਤੇ 273 ਆਹ, 130 ਆਹ ਤੇ 273 ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਤੇ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਪਿਆ ਗਾ। ਤਾਂ 3 ਆ ਗਿਆ, 7 ਤੇ 3 10 ਆ ਗਿਆ, 9 ਤੇ 1 10 ਤੇ 1 11 ਤੇ 2 13 ਆ ਗਿਆ, 1 4 ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ 4303 ਰੁਪਏ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 8-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ, 4303 ਰੁਪਏ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ 15 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ 12 ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹੀ 3 ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਤੇ, ਬਸ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ 12 ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਭਾਈ 18 ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਾਏ ਆ ਜਾਂ 19 ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਾਏ ਆ ਜਾਂ 21 ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 9 ਰਹਿ ਗਏ, ਬਾਕੀ 10 ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ 12 ਜਾਂ 13 ਜਾਂ 14 ਜਾਂ ਈਵਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣਾ ਧੌਂਕਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗਧਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਗਧਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚੋਂ ਆਇਆ। ਗਧਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਯਾਰ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। 100% ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਉਹ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਕਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਦਾ ਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਸ਼ੋਅ ਆਪਣਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੈਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।